Very good morning and Shanti. Respected Medical Director, sir, esteemed faculty members, respected VK3s, dear colleagues, and my dear friends. It is my great honor and privilege to extend a heartfelt welcome to our distinguished guests, respected PK Shriyadini and VK Rakshaditi, who have graciously accepted our invitation to visit AIMS Bhuj. Didi, your presence among us is truly inspiring. Your dedication to spreading the values of peace, positivity, self-awareness, and spiritual empowerment has touched countless lives. We are grateful for this opportunity to learn from your wisdom and experience. Today's motivational session is especially meaningful for all of us as a healthcare professionals in our journey of caring for others. We often face challenges, stress, and responsibilities. Your guidance on maintaining inner peace, positive thinking, and emotional resilience will undoubtedly inspire us to become not only better professionals but also better human beings. On behalf of the entire Games family, I extend a warm and heartfelt welcome to both of you. Darkness cannot drive out lightness, only light can do that. Now I request Dr. Narendra Hirani sir, PK Shreya Didi, PK Raksha Didi, PK Bhakti Didi, and all the other assistant deans and Dr. Ekta ma'am to kindly proceed for the lamp lighting. Now I request our dean sir to welcome PK Shreya Didi with the bouquet. Now I request Dr. Ekta ma'am to welcome PK Raksha Didi. It is a great honor for me to introduce to you PK Shreya Didi. PK Shreya Didi has been associated with Brahma Kumari's organization for over 16 years. She has been actively involved in conducting spiritual seminars and workshops across different parts of the world. Her work focuses on using spiritual principles to handle stress, overcome overthinking, improve relationships, and let go of the past. She has been featured on numerous TV shows, radio programs, and YouTube channels. PK Shreyadri is also part of the show Recharge Mantra on Radio Mirchi, which is broadcasting daily from 6 a.m. to 8 a.m., offering insights to help people navigate life challenges with clarity, strength, and hope. PK Shreyadri holds a graduate degree in English literature and a postgraduate degree in ethics. She has also worked with NDTV. There are moments in life when knowledge heals, words inspire, and silence teaches. Today we are about to experience all three. It is my honor to invite PK Shreyadri to address the gathering and share her invaluable insights on leading a balanced, peaceful, and purpose-driven life. Good morning. Good morning. Om Shanti. You all good? All good? Tired? Some faces look tired together. My doctor is always tired. Once every time. It's always an honor and privilege two sectors of the society when I meet. I always feel that it is my fortune. एक तो जब हम डॉक्टर्स को मिलते हैं और दूसरा जब हम आर्म्ड फोर्सेस को मिलते हैं, क्योंकि दिन रात वो लोगों की सेवा में हासिल रहते हैं। और ये दो लोग ऐसे हैं और जिनको मिलते हैं ना, वो बोलते नहीं है आपको जल्दी से। चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं, उनके लिए भी जब भी कुछ ऊपर नीचे होगा, वो सब दुआ करते हैं, सब प्रे करते हैं, क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं। और ऐसे ही डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन होता है कि जब आप किसी को ठीक करते हैं, ठीक करके वापस भेजते हैं, so it is unlike any other profession. Even though थैंक यू करके वो चले जाएंगे,
बट नॉर्मली वो जल्दी से भूलते हैं। डॉक्टर्स हैं, केयर गिविंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो भी लोगों की दुआओं में हमेशा रहते हैं। बट बिकॉज वी आर इन दैट वी फॉरगेट। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हमारा जो रोल है इतना ऑनरेबल है, इतने हम फॉर्चुनेट हैं कि दिन रात अलग से कोई सेवा करने नहीं हमें जाना होता। बाकी सब प्रोफेशन में वो अलग से अपना बिजनेस करेंगे, फिर सोचेंगे अच्छा कुछ समाज की सेवा भी करें। तो हर एक को सेवा के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। तो डॉक्टर को कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिन रात वो क्या कर रहे हैं, चलिए डे इन एंड डे आउट क्या कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन जो सेवा करने वाले हैं, जो सर्विंग द सोसाइटी, तो सेवा करने वाले खुद अंदर से कैसे होने चाहिए? Because it is not just about physical healing. At one end, it's a profession which is bringing a lot of blessings. But at the other end, it is a profession where everybody who's coming to the hospital or who's coming to meet the doctor is not a happy person. You agree? तो हर एक जो आपके पास आ रहा है, वो कौन सी एनर्जी लेकर आ रहा है? नेगेटिव में भी कौन कौन सी एनर्जी लेकर आते हैं? हर कोई, एवरीबॉडी, चाहे वो पेशेंट है, उसकी फैमिली है, सब जो आते हैं, जो यहाँ रुके हुए हैं, जो एडमिट हैं, कौन सी एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहे हो सब? कौन सी इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो? डर और फियर बहुत डोमिनेंट है। फियर और हॉस्पिटल में पेन, फियर है, पेन है, फैमिली तो उनके प्रति क्या है? वरिड, फियर है, पेन है, वरी है, और कौन सी एनर्जी? पीयर प्रेशर। स्टूडेंट्स हैं तो पीयर प्रेशर भी है। अब ये जो सारी एनर्जी आ रही है नेगेटिव के इमोशंस, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। आपको लगता है इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता होगा? लगता है? क्योंकि हम अपने, अभी हम बात कर रहे थे ऑफिस में, तो पता चला आपका जो एजुकेशन है काफी लंबा हो रहा है, तो वी नो अबाउट इट। 5 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, मतलब पूरी सुपर स्पेशलिटी करते करते तो कभी कभी 10-12 साल भी लग जाते हैं। 10-12 साल के बाद भी हम जो सीखते हैं वो है पेशेंट को कैसे फिजिकली ट्रीट करना है। लेकिन कभी कभी जो चीज हम नहीं सीखते कि वो पेशेंट जो आने वाला है वो बहुत सारी कौन सी एनर्जी लेकर के आएगा? नेगेटिव एनर्जी लेकर, दर्द की एनर्जी लेकर आएगा। तभी आपने कहा अपने दिन भर में पेशेंट बहुत इरिटेटिंग है। बोलते हैं आपको इरिटेटिंग पेशेंट, किस किस के पास इरिटेटिंग पेशेंट्स हमको मिले हैं कभी न कभी? And why do we say that the patient is irritating? What is that one habit of the patient? तो हमें बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि क्योंकि we keep asking the same question again and again and again, and because they keep asking the same thing again, हम उनको कहते हैं कितना इरिटेटेड है। Have you ever realized कि वो आता किस, कौन सी एनर्जी में आ रहे हैं? वो पेशेंट हमारे सामने है, वो क्या लेकर आ रहे हैं? भूल जाते हैं हमें बीच बीच में कि वो जो सामने खड़ा है वो दर्द में है, जो सामने खड़ा है उसको बहुत चिंता है, उसको नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या निकल कर आना है, आगे का क्या ट्रीटमेंट होना है। जो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, जो आप दिन भर करते जाते हैं एक के बाद एक, वो उस फैमिली के लिए नॉर्मल नहीं है। वो उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है कि अचानक आज सीटी स्कैन क्यों लिख दिया, एमआरआई क्यों लिख दिया, पता नहीं क्या हो गया। सो ही इज इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, एक्सट्रीम फियर। और एक्सट्रीम फियर में ज्यादा पूछना नेचुरल है कि नहीं है? लेकिन पेशेंट इरिटेटिंग नहीं होता है। पेशेंट वहां बैठा है, वो बहुत सवाल पूछ रहा है,
ऐसा हो सकता है कि वही पेशेंट किसी को इरिटेटिंग लगता है और किसी को नहीं लगता, ऐसा होता है ना. वन इज पेशेंट इज इरिटेटिंग and the other is I get irritated by that patient. दोनों में से कौन सा? Because if the patient is irritating, then every doctor who meets that patient should get irritated, but that doesn't happen. वही एक को irritating लगता है, दूसरे को लगता है ठीक है ना, क्या बड़ी बात है. So it is not patient which is irritating. उसके सवाल पूछने के बाद आपका मन चलना शुरू होता है. होता है कि नहीं होता? वो सवाल ज्यादा पूछ सकता है, फिर उसके सवाल सुनने के बाद आप वहां बैठ करके बाहर आप जो कर रहे हैं ना, वो तो आपके लिए इतना इजी हो गया होगा अब तक, क्योंकि बार बार करते रहेंगे कोई चीज तो उस चीज की एक्सपर्टीज आ जाती है. नींद से भी उठ करके आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करके जो जिसको जो करना है इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं, फटाफट कर देते हैं. लेकिन किस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है, इस सामने वाले को डील कैसे करना है. अब वो अगर बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये मन चलना शुरू होता है और ये मन कहता है इतने सवाल क्यों पूछ रहा है, ये मेरे पास आया नहीं क्यों, इसको कैसे समझाएं. और वो एक एक थॉट जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, वो क्या क्रिएट करता है अंदर में? एवरी थॉट. ये मन, आपके पास मन है तो सर बुद्धि है. मन है कि नहीं? मन का काम क्या है? मन का काम क्या है? इतना साइलेंस. मन क्या करता है सारा दिन? सोचता है. How many thoughts in 1 minute? 1,000, no sister. If we have 1,000 thoughts in 1 minute, we will not survive 1 minute. वाक्य बोल पाते हैं, sentences around 7 to 8. That's all we can talk ना. 1 मिनट में 7-8 सेंटेंस बोल पाते हैं, तो 1 मिनट में कितने थॉट्स चलते हैं उनके मन के अंदर? अराउंड 30-40. अगर आपका मन स्टेबल है तो अराउंड 30-40. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो 50-60 भी हो जाता है. अब ये जो थॉट्स चल रहे हैं, ये अपने आप आते हैं. ये अपने आप आते हैं, जैसी सिचुएशन होती है वैसे अपने आप आते हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक फैक्ट्री की तरह है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. फील होता है आपको चलता जा रहा है? कई लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग हो गई है, सोते समय भी चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. और जो चलता जाएगा वो इमोशन क्रिएट करेगा, कभी फियर, कभी वरी, कभी हैप्पीनेस. और ये जो चलता जाता है ये थकाता है. अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी तो ये थकाएगा, और अगर थका हुआ मन होगा तो थके हुए मन से बाहर आके जो करेंगे उसके अंदर क्या होने शुरू हो जाएंगे? थका हुए मन से अगर आप पेशेंट को कुछ भी करेंगे, सर्जरी करेंगे, ट्रीट करेंगे, यू थिंक देयर आर चांसेस ऑफ मोर मिस्टेक्स थके हुए मन से? हो सकता है कि नहीं? अब ये मन दोनों रीति से थक रहा है. एक, नॉट गेटिंग सफिशिएंट स्लीप. डॉक्टर्स स्लीपिंग वेल? Are they sleeping? Do they get sufficient time to sleep? They get certain, yeah, but they're probably not using that time. See, a lot of things, as a doctor, if I don't take care of myself, there is a family who's coming and surrendering their loved ones in front of you. It's a very big responsibility. कहीं पर भी और हम इतने ट्रस्ट के साथ जाकर के अपने लव्ड वंस को सरेंडर नहीं कर देते कि डॉक्टर साहब अभी जो करना है आप कर दो. इसीलिए यही प्रोफेशन है जिसमें हम कहते हैं फैमिली डॉक्टर. उस डॉक्टर को धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? हमारी फैमिली. हमारा कोई फैमिली लॉयर नहीं होता, हमारा कोई और प्रोफेशन की फैमिली नहीं होती, पर हर एक का क्या होता है? एक फैमिली डॉक्टर. सो द ट्रस्ट लेवल इज वेरी हाई. और उस समय पर जब कोई, इमेजिन अगर कोई अपना बच्चा, अपना पति, अपना कोई सरेंडर कर रहा है आपके सामने, the responsibility is a lot or not?
And as a responsible doctor, I have to first take care of myself, physically and emotionally. Physically also and emotionally. If I'm not taking care of myself physically also, then also I'm cheating that patient. Physically, whether it is sleep, whether it is nutrition, no matter how many patients are standing outside, आप अपने को ये भी धोखा नहीं दे सकते कि इनको कम कईयों का जेन्युइन होगा, मैं सबको देख लूं, आप सबको भी सोचेंगे तो भी नहीं हो सकता. इट इज इम्पोर्टेंट कि जितना आप रोल प्ले कर रहे हैं, यू आर देयर 100% फिजिकली एंड इमोशनली फॉर दैट पेशेंट एंड देयर फैमिली, because they're not going to come with happy energy. So you need extreme amount of emotional strength to deal with them. एक मॉल में कोई जाता है, कैसा जाता है वहां पे? दर्द लेकर जाता है. एक मॉल में जा रहा है, सलून में जा रहा है, happy people are going there. But when they're walking into hospital, they're not happy people who are walking in. It is vibrating at a different energy. Just to work in this energy and not get influenced by this energy, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए. हर जगह की एनर्जी अलग होती है कि नहीं होती? टेम्पल की एनर्जी में कौन सा वाइब्रेशन? आज ही टेम्पल में जाए, मंदिर गुरुद्वारे में, आप तो जाते, आपने कुछ नहीं किया अभी, नो प्रेयर नथिंग, यू जस्ट एंटर्ड दैट प्लेस. सो व्हाट इज दैट यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग? एकदम पीस. अगर आप किसी सिनेमा में जाए, मॉल में जाए, इट इज बबलिंग विद एक्साइटमेंट, बबलिंग विद हैप्पीनेस. किसी भी स्थान का वाइब्रेशन कैसे बनता है, उसका एनवायरनमेंट कैसे बनता है? सब जगह चार दीवारें होती है, मंदिर में भी ऐसी होती है, हर जगह ऐसा ही होता है. किसी भी जगह का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है? हर घर का अलग एनवायरनमेंट होता है कि नहीं होता? हर घर का अलग, हर स्थान का अलग एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट बनता कैसे? वहां की एनर्जी से. और एनर्जी कैसे रेडिएट होती है? जो हम सोचते हैं. तो हर कोई जो मंदिर में जाता है वो प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, प्रेयर कर रहा है. एवरीबडी इज थिंकिंग वेरी नाइस. एवरीबडी फील्स कि यहाँ पर हम गलत नहीं सोच सकते, तो सब अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है. ऐसे आप अगर किसी सिनेमा आदि में जाए, एवरीबडी हैप्पी, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, हैप्पी एनर्जी है. दैट इज नॉट द केस, मोस्टली द केस इन द हॉस्पिटल. क्योंकि यहाँ सब कैसा सोच रहे हैं, यहाँ सब कैसा सोच रहे हैं, मेजॉरिटी. और इसीलिए यहाँ की एनर्जी थोड़ी सी हैवी हो गई. हम मिलने भी किसी को जाते हैं तो भी हमें वो एनर्जी का डिफरेंस फील होता है. हम बीमार नहीं है, हमारा भी कोई बीमार नहीं है, लेकिन किसी को मिलने भी जाते हैं तो भी उस एनर्जी के अंदर जो फियर है, जो एंजाइटी है, जो इनसिक्योरिटी है, वो पैल्पेटेबल होती है. आप उसको फील कर सकते हैं. इज इट ट्रू और नॉट? सो आप तो उसमें रह रहे हैं. अगर हम उसके अंदर रह रहे हैं और अगर हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं करें तो उसका इम्पैक्ट पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? कहीं पर कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही है, हमारे पास छाता ही नहीं है और रेनकोट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? So am I protecting myself emotionally is the big question. So the first thing is, which is not my area of expertise, but still I feel कि physically also जितना एक डॉक्टर को अपना ध्यान देना चाहिए, स्लीप को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के, डाइट को लेकर के, जबकि उनको सारी नॉलेज है. जितनी नॉलेज उनके पास है उतनी तो किसी के पास भी नहीं है. नॉलेज भी है और उनको नॉलेज देते भी है. पर कभी कभी अपने लेवल पर थोड़े से क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं कि नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी पीपल. For example, like brother said, you're getting adequate amount to sleep, whatever, 7, 8 hours, 6 hours, and I spend some time watching something or, and I don't sleep well, 4 hours ही सोए वगैरह. मुझे मिला था पर मैं नहीं सोया, और अगले दिन अगर मेरे से थकावट के कारण, फिजिकली टायर्ड होने के कारण कोई मिस्टेक हो गई, you think you'll be able to live with that guilt? Because it is one profession जहाँ पर गलतियां की सेकंड चांस या मार्जिन बहुत ज्यादा होती नहीं है. कोई और प्रोफेशन में सेकंड चांस होता है, यहाँ पर तो सेकंड चांस होता ही नहीं है.
So every time you're compromising on your sleep or your nutrition, you have to tell yourself, I have to first take care of myself. जैसे अगर आप देखें हर चीज की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, नहीं तो अचानक बंद हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आप ऐसे होता है हर चीज के साथ। और टेक्नोलॉजी तो फिर भी आजकल इतनी है, फोन आके हमने देखा नहीं, पर वो वहां पे साइन जरूर दे रहा होगा लो बैटरी का। देता है फोन की नहीं देता, लो बैटरी का साइन देता है ना। हमारा कोई साइन नहीं है, सब चलाते रहते हैं। बाकी सब चीजों में हम अपने को ढाल लेते हैं। जैसे आप देखिए पहले वो फोन आता था, जो स्मार्टफोन से पहले वो छोटा डब्बा वाला फोन होता, उसको कितनी बार चार्ज करना पड़ता था दिन में? बार बार। वो वाला जो छोटा सा, जैसे यू कुड जस्ट कॉल, रिसीव कॉल, मैसेज, हाउ मेनी टाइम्स यू हैड टू चार्ज इट? वंस अ डे। किसी किसी का तो 2 दिन में, हाँ, एक बार चार्ज करो 2-2 दिन चल जाता था फोन के। स्मार्टफोन आया, which meant कि आप एक ही फोन से कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, टिकट भी बुक कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें आप कर सकते हैं एक ही फोन से। लेकिन मल्टीपल चीजें करने के लिए आपको उसको चार्ज भी मल्टीपल बार करना पड़ेगा। तो हमने अपने को चेंज किया, हमने फोन नहीं छोड़ा। हमने एक चार्जर घर में रखा, दूसरा चार्जर ऑफिस में रखा, तीसरा चार्जर कार में रखा। और उतना ही नहीं, वो उतने चार्जर से भी नहीं चलता, हम साथ में क्या लेकर चलते हैं? हम पावर बैंक साथ में लेकर के चलते हैं कि कभी भी अगर हो तो हम उसको क्या कर सके, चार्ज कर सके। और हम वेट नहीं करते जीरो होने का कभी भी। अगर हमारे पास पावर बैंक है तो हम वेट करते हैं फोन जीरो हो जाए। क्या करते हैं हम? जब टाइम होता है उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, टाइम में अच्छा चार्ज होता जाए। तो जितना हम टेक्नोलॉजी को चार्ज करने के लिए कितना हमने अपने को अडेप्ट कर दिया है, ऐसे हम अपने को चार्ज करने के लिए टाइम निकालते हैं। नहीं तो जैसे वो माइक टक करके बंद हो गया ना, आजकल ऐसा ही हो रहा है दुनिया में। पता ही नहीं, कहते कल तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं कैसे इनको अचानक कैसे हार्ट अटैक आ गया। अचानक कुछ नहीं आता है, इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेटिव एनर्जी बॉडी पर डैमेज कर रही होती है, एकदम दिखाई देता है। ये तो कौन कब सुना था 38 में हार्ट अटैक, जो सारी चीजें हम सुन रहे हैं, 1 out of 4 in depression, and it is just increasing. Mental health issues increasing, depression increasing, suicide rate increasing, divorce rate increasing. Why? Because we're not taking care of ourselves. आप फ्लाइट में अगर देखें ना, तो एयर होस्टेस देखा होगा या सुना होगा, फ्लाइट चलने से पहले एक सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन। और वो कहती है अगर किसी भी कारण से हवा का दबाव कम होगा ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन मास्क आएगा, and then she explains everything, and then she says किसी की सहायता करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहने, बोलते ऐसे बोलते। अब जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप बैठे हुए हैं फ्लाइट में और आपके साथ आपका छोटा बच्चा या आपका कोई मदर साथ में बैठी हुई है, और हवा का दबाव कम होता है, वहां से 2 ऑक्सीजन मास्क नीचे उतरता है, यू सिटिंग विद योर चाइल्ड, आप क्या करेंगे? हाँ जी, बच्चे को पहले पहनाएंगे, वरना एवरी टाइम व्हाट शी इज गिविंग इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग ना। उसने कहा हवा का दबाव कम हो, नकाब नीचे आएगा, किसी की सहायता करने से पहले अपना मास्क ठीक से पहने। हमने कहा हमारा बच्चा बाजू में बैठा हुआ है, हम क्या करेंगे? आपने कहा नेचुरली पहले उसको पहनाएंगे। तो वो भी यही अनाउंसमेंट करते थे ना, इन केस अगर आपका फैमिली मेंबर बैठा हुआ है तो आप अपना मास्क पहनने से पहले उसको पहनाए। तो भी ऐसा बोलते हैं, और वो क्या करते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं, एजुकेट नहीं करते। तो आज भी हमारे माइंडसेट में कि अभी द मोस्ट नेचुरल थिंग इज टू हेल्प माय चाइल्ड। बट उन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि हवा का दबाव मतलब देयर इज लेस ऑक्सीजन। अब इफ देयर इज लेस ऑक्सीजन, आप उनको पहनाने जाएंगे तो आपके हाथ क्या होंगे? कांपने शुरू हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि यू कैन नॉट ब्रीथ। तो जब आप ब्रीथ नहीं कर सकते तो आप उनको भी नहीं पहना पाएंगे, और एक्चुअली में आप ना उनको मदद कर पाएंगे ना खुद को मदद कर पाएंगे।
And that is why the rule of protecting somebody, of safety, of taking care is always पहले किसका ध्यान रखो, पहले किसका ध्यान रखो। फिजिकल लेवल पर हम करते भी हैं, आप हर पेशेंट देखने से पहले हाथ धोएंगे, सर्जरी से पहले मास्क पहनेंगे, आप करते हैं कि उसका इन्फेक्शन मुझे नहीं लग जाए। कोविड के दिनों में तो पूरा वो पीपीई सूट ही पहनते थे ना, कि उसका इन्फेक्शन मुझे नहीं लगता। आई वाज प्रोटेक्टिंग माय सेल्फ फिजिकली, व्हिच वाज द राइट थिंग टू डू। बट दे आर नॉट ओनली कमिंग विद फिजिकल इन्फेक्शन, दे आर आल्सो कमिंग विद emotional infection, which is fear and anger. Something that we didn't see in hospitals before. अभी कितना बढ़ता जा रहा है anger, the patient getting angry, to an extent getting violent at doctors. अब वो सारा emotion जो है वो किसको face करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कितना कितना अंदर से mentally, emotionally strong और stable होने की जरूरत है। Do you think it is important for a doctor? आपको लगता है it is only the study part which is important, or also being stable and strong and calm at the same time equally important to deal with the patient? क्या लगता है कि नहीं जरूरत है इसकी? Because otherwise it will start affecting your quality of life. आप सेवा कर रहे होंगे लेकिन फिर भी आपको अंदर में खालीपन लगेगा। There's a new term in medical which is called compassion fatigue. मतलब डॉक्टर्स को कंपैशन फटीग हो गया है। डॉक्टर्स जिनके अंदर बहुत रहम होना चाहिए एक एक पेशेंट और फैमिली के प्रति, उनमें कंपैशन खत्म हो गया है। और ही उनको उनके ऊपर क्या आ रहा है, और ही उनके ऊपर क्या आ रहा है, दो सवाल ज्यादा पूछ रहे तो इरिटेटिंग है, और ज्यादा टाइम मांग रहे तो गुस्सा, तो फिर कैसे करें? बिकॉज अनटिल एंड अनलेस पेशेंट का भी मन शांत होगा, उसकी हीलिंग नहीं शुरू होती है। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर कभी कभी इतना भी कह देता है ना, ठीक हो जाएगा, अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, डॉक्टर ने सिर्फ इतना कह दिया डोंट वरी ठीक हो जाएगा, उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, हील दाई सेल्फ, हीलिंग अंदर से होती है। कहते ना ही केयर्स, डॉक्टर ट्रीट्स, हील दाई सेल्फ, हीलिंग अंदर से होती है। अगर कोई होप गिव अप कर देता है और आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे लो, उसकी हीलिंग नहीं होती है, क्योंकि उसका मन उस हीलिंग को स्टॉप कर देता है। और जैसे हम कहते हैं नहीं सब ठीक हो जाएगा, उसका मन उस हीलिंग को करने के लिए तैयार हो जाता है। सो डॉक्टर की स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे यू टेल मी, डॉक्टर स्टेट ऑफ माइंड का पेशेंट पर इफेक्ट पड़ता होगा कि नहीं? मन से बीमारी होती है कि नहीं? आप तो रोज बोलते हैं इतने सारे पेशेंट्स को, मन का उनके तन पर कोई प्रभाव पड़ता है? जो आपके पास आते हैं पेशेंट्स, उनके मन का उनकी बीमारी से कोई लेना देना है कि नहीं? क्या उनका स्ट्रेस, उनका फियर, उनका एंगर उनके शरीर में बीमारी क्रिएट कर सकता है? करता है, कर सकता है। उनकी नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर को डैमेज करती है कि नहीं करती? जिसको हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी कहते हैं। इट इज योर माइंड व्हिच इज क्रिएटिंग द डिजीज। अगर उनका मन उनके शरीर में बीमारी क्रिएट कर रहा है, तो डॉक्टर का मन, नर्स का मन, केयर गिवर्स के मन की जो एनर्जी है, उस पेशेंट की हीलिंग में कोई रोल प्ले करती होगी कि नहीं करती होगी? करती होगी कि नहीं करती होगी? डू यू थिंक सो? So that means हम उनकी हीलिंग को फास्ट भी कर सकते हैं और हम उनकी हीलिंग को स्लो भी कर सकते हैं। Everybody, caregiver, nurse, doctor, everybody is responsible. That one line, one line. पर कभी कभी तो वो 24 घंटे इंतजार कर रहे होते हैं पूरा परिवार। 8 बजे डॉक्टर साहब आएंगे, 8 बजे डॉक्टर साहब आएंगे, सारा एडजस्ट करते हैं अपना शेड्यूल। इतना इजी नहीं होता। आप बाहर की साइड से एक बार आकर के देखा करो, 8 बजे का टाइम भी है, कोई बच्चे को छोड़कर, कोई किसी को छोड़कर, किसी को, सब कुछ एडजस्ट करके 8 बजे पूरी फैमिली वहां पर पहुंच जाती है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि 8 बजे डॉक्टर साहब ने कहा था मिलेंगे। अब पता नहीं वो क्या कहेंगे, और अब जो वो कहेंगे उससे उनके अगले 24 घंटे डिसाइड होने वाले हैं।
और कभी कभी उसमें हमारे लिए तो रूटीन है, हमें तो सब तक जानना है, सबको बोलना है, तो हम कई बार इतना जल्दी जल्दी आते हैं और आपस में दो चार डॉक्टर बात करते हैं और बात करके कई बार चले भी जाते हैं, और पेशेंट और उसको तो पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है। और वो जो कई बार आपकी टर्मिनोलॉजी भी होती है ना, डॉक्टर की एक अपनी भाषा होती है, तो वो आप आपस में बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप उस भाषा में पेशेंट और उसके परिवार के सामने बात करते हैं, वो आपके लिए नॉर्मल है, उसको तो कुछ समझ नहीं आता और ही डर जाता है कि पता नहीं मुझे हुआ क्या है। कुछ दिन पहले आई वॉज इन दिल्ली एंड ILBS हॉस्पिटल है वहां पर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइनरी साइंसेस। तो वहाँ के जो सीनियर सबसे डॉक्टर सरीन करके हैं जो है, तो उनके साथ बात चल रही थी, उन्होंने भी अपने हॉस्पिटल में प्रोग्राम रखवाया था। तो वो लिवर इंस्टीट्यूट है, तो कहा जब लिवर किसी का खराब हो जाता है तो ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन बचता है। बड़ी सर्जरी होती है, महंगी सर्जरी होती है, टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और कहा वो पेशेंट के परिवार वाले सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। किसी ने अपना घर मॉर्टगेज कर रखा है, किसी ने अपनी 2 ही गायें थी वो बेच दी है, किसी ने अपने बच्चे की एजुकेशन छुड़ा दी है कि डॉक्टर साहब कैसे भी करके आप इनको बचा दो, वरना दे पुट एवरीथिंग जो भी उनसे होता है कि उस परिवारजन को बचाने के लिए। पर वो कभी कभी हमें याद नहीं रहता कि वो कितनी बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम सबको बचा सके वो बात नहीं होती है, क्योंकि हर पेशेंट जो आता है वो अपना कार्मिक अकाउंट पे लेकर आता है। कभी कभी आप 100% भी देंगे तो भी जरूरी नहीं है कि वो बचेगा, वो भी कुछ नहीं, क्योंकि उसका भी कार्मिक अकाउंट है। लेकिन ये जरूरी होता है कि आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई कुड। बस हमें गिल्ट में भी जाने की बात नहीं होती है, इससे लॉट ऑफ डॉक्टर्स गोइंग इन गिल्ट ऑल्सो। होता है गिल्ट, कभी कभी किसी को गिल्ट होता है, गिल्ट नहीं करना चाहिए। आप भगवान नहीं है, भगवान भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। आप डॉक्टर हैं, भले वो नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, पर नेक्स्ट टू गॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉड इज ऑल्सो ओशन ऑफ लव, गॉड इज ऑल्सो ओशन ऑफ कंपैशन। गॉड का मतलब ये नहीं कि हर एक की प्रॉब्लम ठीक कर देते, तो फिर किसी के सामने प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आपने अपना 100% लविंगली विद कंपैशन दिया, योर रोल इज डन। Everybody who's coming in the hospital is also coming with their karmic account. इसलिए कभी कभी आपने महसूस किया होगा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है वो भी सुलझ जाता है, जिसमें आपको वो भी नहीं थी कि ये होगा कि नहीं होगा, हो जाता है, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर चला जाता है। और जो इतना सिंपल केस था जो आप रोज हैंडल करते हैं, जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं, जिसमें 100% श्योरिटी थी कि ये पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर के हॉस्पिटल से जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन निकल जाता है, आपको भी समझ में नहीं आता क्या होता है सर कि नहीं होता। So it is not only you, it is also their karmic account, their family's karmic account. But have I given my best? Have I done everything that I could have done physically and emotionally? Because ट्रीट करना as well as उनकी फैमिली के साथ डील करना वो आपके रोल में आता है। And that is another thing which Dr. Sarin is a very senior surgeon, 75, 76. He happened to listen to the radio show, जो morning में चलता है, while he would go for a gym. And that's where he shared what he picked up. He said, I also don't remember exactly, but something हमने इसमें टॉक शो में बात चल रही थी कि एक बार अगर आप कोई चीज करते हो तो एक बार गलती है, अगर कोई एक बार गलती हो जाती है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही चीज अगर आप बार बार करते हो तो वो गलती नहीं है, वो डिसीजन। एक बार आपने कुछ किया, दैट इज अ मिस्टेक, बट इफ यू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, इट्स अ चॉइस, इट्स अ डिसीजन दैट यू आर मेकिंग। So you can't always call it a mistake. It's a decision, then it becomes a habit, then it becomes your personality. So he said, when I heard that, I used to always feel कि मैं पेशेंट की फैमिली को उतना टाइम नहीं देता,
क्योंकि एक के बाद एक सर्जरी है, 12-12 घंटे की सर्जरी है। सर्जरी अपने में इतना थका देती है, उसके बाद फिर पेशेंट की फैमिली को जितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सर्जरी है, वो भी बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, कई बार गुस्सा भी कर जाते हैं, कई बार जब होप नहीं होती तो लड़ने भी लगते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। So he said कि I was not giving enough time to the family. But he said, I realized I was doing this again and again and again and again, and this wasn't a mistake. This was a conscious choice. और तब मुझे लगा नहीं, मुझे चेंज करने की जरूरत है। मैं जितना समय पेशेंट को दे रहा हूँ उतना ही समय मुझे जहां तक हो सके, क्योंकि फैमिली का मन शांत होगा ना, तो उनका मन की एनर्जी भी इस पेशेंट को हील करने में मदद करेगी। तो बहुत छोटी 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 चीजें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डबल डॉक्टर बन जाएंगे। परमात्मा कहता है डबल डॉक्टर, एक फिजिकल जिस्मानी डॉक्टर और दूसरा रूहानी डॉक्टर। आपके पास जो आ रहा है वो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नहीं है। आप ह्यूमन को स्टडी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ह्यूमन नहीं है ना, वो ह्यूमन के साथ कौन आता है? एनर्जी, बीइंग। और सारी फीलिंग किसके अंदर हो रही होती है? ह्यूमन में नहीं होती। इसलिए कभी आप देखें आपके पास कोई आता है बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में है, आप कहेंगे पेशेंट को जल्दी जल्दी ले जाओ, मिस्टर सो एंड सो को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, फॉर सम रीजन आप उनको नहीं बचा पाते। आता है तो वो पेशेंट है, मिस्टर सो एंड सो है, लेकिन जब आप नहीं बचा पाते तब आप क्या कहते हैं? किसको बाहर ले जाओ? किसको बाहर ले जाओ? बॉडी को। क्या रह गया? अब बॉडी आया था तो पेशेंट, अभी बॉडी। घर वाले भी क्या कह रहे होते हैं? अभी तक वो उनका बेटा था, किसी का पति था, अब वो लैंग्वेज क्या यूज करना शुरू कर देते हैं? हाँ, बॉडी को हॉस्पिटल से लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, बॉडी को हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं। फिर वो बॉडी को हॉस्पिटल से लेकर के आते हैं और फिर वो उस बॉडी का क्या कर देते हैं? संस्कार, जला देते हैं। तो मिट्टी का बना, मिट्टी में मिला शरीर। फिर 3-4 दिन के बाद हर एक के लिए वो क्या रखते हैं? प्रेयर मीटिंग, प्रार्थना सभा रखते हैं कि नहीं, तो 3 दिन बाद, 13 दिन बाद। वो प्रार्थना सभा शरीर के लिए नहीं होती, वो प्रार्थना सभा किसके लिए होती है? किसकी शांति के लिए होती है वो प्रार्थना सभा? आत्मा की शांति के लिए। दिस ह्यूमन बीइंग है ना, जीव आत्मा है। तो जो बीइंग है वो तो अविनाशी है। बॉडी छोड़ी जाकर के दूसरा कॉस्ट्यूम ले लेंगे, जहां तक उसका पाप है बचाया, फिर जाकर के दूसरा कॉस्ट्यूम लेंगे। तो वो जो प्रेयर मीटिंग है, शांति किसके लिए है? सोल के लिए। खत्म क्या हो गई? बॉडी। पर जिस समय वो व्यक्ति आपके पास आता है तो वो दोनों है, वो बॉडी भी है और बीइंग भी है। और बीइंग को उस समय पर चाहिए होती है थोड़ी सी सोलेस, हाँ सब ठीक हो जाएगा। दैट इज द रोल ऑफ अ डॉक्टर। वो साथ में है, तब आप देखोगे कि खास उसकी हीलिंग होगी और कितनी जल्दी जल्दी आपके पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे, प्रोवाइडेड आप चाहते हैं ना वो जाए और वापस लौट करके ना आए। वो भी आजकल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अंदर में ये भावना कि जल्दी जल्दी सब ठीक होकर के जाए, वो हमारी एनर्जी से होगा। अब उसके लिए मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है। सिंपल है, बहुत मेहनत नहीं है। यहाँ सामने पेशेंट बैठा है, उसने 10 सवाल 20 सवाल पूछने हैं, आप समझ कर चलो, क्योंकि वो डर में है। वो सवाल पूछ रहा है, वो उसका रोल है। बाहर हम ट्रीट कर रहे हैं, साथ में क्या चलना शुरू हो जाता है? हमारा मन। हमारा मन कहता है इतने प्रश्न क्यों पूछ रहा है, इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। आप उससे अटेंशन हटा करके किस पर अटेंशन लेकर आओ? वहां आप ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको आता है, लेकिन साथ साथ एक अटेंशन और देना है कि मन ने जो सोचना है ना उस पेशेंट के बारे में, वो कैसा सोचना है? कैसा सोचना है? कैसा सोचना चाहिए? आप बताओ, दर्द में आया, दर्द वाले को क्या देकर भेजेंगे? दर्द वाले को क्या देकर भेजेंगे? सोलेस देकर भेजेंगे, सुख देकर के भेजेंगे। तो मुझे इसको ट्रीटमेंट भी देना है, दवाई भी लेकर के देनी है, लेकिन वो वहां से बहुत सारे पेशेंट की ये कंप्लेन कई बार रहती है, मैं तो जनरली बात कर रही हूँ, जैसे आपकी बात नहीं कर रही, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। उनको डर ही लगा रहता है कि ये क्वेश्चन पूछें कि ना पूछें। वो भी एट फॉल्ट होते हैं आजकल, थोड़ा ऐसा नहीं है कि सारे, क्योंकि अभी क्या है ना, वो आधे डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं।
वो ही आपको बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सारी बीमारी पहले कहाँ दिखाते हैं, गूगल में। सब देख लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, सिम्टम्स भी पढ़ लेते हैं, दवाइयां भी पढ़ लेते हैं, तो खुद ही सारी इंफॉर्मेशन लेकर के फिर कभी कभी कुछ बिल्कुल गलत है वो चीज करना, बिकॉज वो ट्रस्ट एलिमेंट को खत्म करते हैं। पहले क्या बिल्कुल ट्रस्ट एलिमेंट, 100% ट्रस्ट एलिमेंट होता था। तो जो बोला, हम तो ये भी नहीं देखते थे दवाई किस चीज के क्या, डॉक्टर साहब ने बोला इतना इतना ये सुबह लेना, दोपहर लेना, रात लेना, कोई क्वेश्चन मार्क के नहीं होता। डाउट एलिमेंट आने का भी कारण है, डाउट एलिमेंट आने का कारण है क्योंकि इस फ्रेटर्निटी के अंदर किसी किसी ने कुछ कुछ ऐसा किया, किसी किसी का वो एक्सपीरियंस बना, तो लोगों के अंदर डाउट आने लगा। ऐसा हुआ कि नहीं, सबने नहीं किया, बट एवरीवेयर ड्यू टू लिटिल बिट ऑफ करप्शन किसी किसी ने कुछ कुछ किया। होता है थोड़ा थोड़ा कि नहीं, हर फील्ड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। एंड वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स मेडिकल, वेदर इट्स मीडिया, वेदर इट्स अभी जो ना अभी आप सब देख रहे थे प्रोटेस्ट हो रहा है नीट एग्जाम का। You think paper leak is the only problem? It's not the main problem. आपको पता है मेन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? हर स्कैम केस की मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना, दिस इज द नीट पेपर स्कैम केस। कभी बैंक का स्कैम निकलता है, कभी कोई बिजनेस का स्कैम निकलता है। स्कैम केस के पीछे का कारण क्या होता है? लीक एक दिखाई दे रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होती है, धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं रहती, फिर वो किस तरह बदलने लग जाती है, एंड सो मेनी इनोसेंट पीपल आर अफेक्टेड इन द प्रोसेस। वो पेपर लीक का कारण सिर्फ वो लीक नहीं है। पहले दो प्रकार की एजुकेशन साथ साथ चलती थी, एक मॉडर्न एजुकेशन, एक स्पिरिचुअल एजुकेशन। अब धीरे धीरे एजुकेशन का जो पर्पस हो गया है ना, धीरे धीरे एजुकेशन हो और उसके बाद धन कमाओ। वो एजुकेशन रह किस लिए गई है? धन कमाने के लिए। चाहे वो छात्र है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, ग्रीड आने लगता है। एंड द मोमेंट आपके अंदर आता है कि सिर्फ धन कमाना है, और जिस चीज के ऊपर पहले प्रायोरिटी बहुत पहले बहुत होती थी, अगर में कोई कहता था ईमानदारी है, कैरेक्टर है, धर्म है। एक समय ऐसा था कहते थे नमक से रोटी खा लेंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। नमक से भी खा लेंगे चलेगा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। आज कुछ चेंज हो गया ना। आज किसी स्कूल में ऑनेस्टी के लिए अवार्ड नहीं है। कोई पेरेंट नहीं कहता कि इट इज ओके इफ यू फेल बट वी वांट यू टू बी ऑनेस्ट। वर्क क्लियर तो भी ठीक है, नहीं क्लियर वर्क कुछ और करेंगे, इट इज ओके। तो वो सारी चीजें जब व्यक्ति धर्म से अलग हो जाता है, तब कपट, ये चीटिंग, it becomes normal. It becomes very, very normal. And when this becomes normal, what happens? It's like जब मौसम बदलता है, वायरल जैसे कई बार फैल जाता है ना, सबको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जिसका शरीर थोड़ा कमजोर होगा, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर होगी, वो बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही जब ये फैलने लगती है ना ये सारी की सारी चीजें, तो जो आत्मा कमजोर होती है उससे फिर कोई ना कोई गलत कर्म हो जाता है। अंदर जो हमारी कमी है वो हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होकर के दिखाई देती है। व्हाट इज द रीजन फॉर करप्शन इन द सोसाइटी? हम कहते करप्शन खत्म करो, करप्शन खत्म करो। व्हाट इज द रीजन फॉर करप्शन इन द सोसाइटी? ग्रीड। Until and unless यहाँ सोल से ग्रीड नहीं निकलेगी, you think करप्शन बाहर खत्म हो सकता है? वो ही नहीं सकता। And what is the reason for greed? Because Gandhiji would say very nicely, he said there is enough for everyone's need, but there isn't enough for everyone's greed. And what is the reason for so much greed? What is the reason for so much discontentment, dissatisfaction, unlimited desire? क्यों है? Most of us have the basic, जो हम कहते थे बस इतना मिल जाए ना तो पास हो जाएगा, एक बार अच्छे से जॉब मिल जाए पास हो जाएगा, अच्छे से रोटी कपड़ा मकान आ जाए पास हो जाएगा। बट हैव यू एवर रियलाइज वो बस कभी होता ही नहीं? क्या कारण है? None of us have probably must have imagined also कि यहाँ तक भी पहुंचेंगे जहाँ तक पहुंचेंगे। होता है इससे फिर we end up doing better than what we had expected out of ourselves. You feel that or not? Most of us, even yesterday I was in another company, PKT, and
There also, they were all very senior people. And I said, raise your hands. Everybody who thinks they have been able to do better than they had expected, and at least 90%. Because who ने ये भी नहीं सोचा था कि वहां तक पहुंच जाएंगे. इतना सब acquire करने के बाद भी क्यों नहीं आता satisfaction? क्यों और होता है और? And there's a difference between desire and aspiration, aim. I'm not talking aim है अच्छा मुझे और आगे करना ठीक है, but we're not just talking about aim. It's a desire. Desire गलत कराती है. इच्छा अच्छा नहीं बनने देती. वो जो डीप डिजायर है वो किसी से झूठ बुला लेती है, किसी से अंडर टेबल हो गया, किसी से पेपर लीक हो गया, वो आपसे आपका जो डार्क साइड है ना वो बाहर निकल करके आ रही है. एक ही सीधा सीधा रास्ते से हम बढ़ रहे हैं आगे और हम अचीव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और धन कमा रहे हैं और पोजीशन लेकर आ रहे हैं. नथिंग रॉन्ग टू क्लाइंब दैट लैडर, परफेक्टली ऑलराइट. भैया ये यहाँ तक है, फिर ये है, फिर ए से बी से सी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मेहनत करनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अक्वायर करना चाहिए. आज 1 BHK, कल 2 BHK, 5 BHK, वो सब नो प्रॉब्लम. लेकिन हम एम की बात है, यहाँ कौन सी बात चल रही है? डिजायर. बस अभी अभी होना चाहिए, अभी अभी होना चाहिए. और उसके लिए मुझे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं वैसे में? किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अपने वैल्यू सिस्टम के साथ. तो वैल्यू सिस्टम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं. बाहर के प्रॉफिट के लिए हम अंदर का लॉस करने के लिए तैयार हो जाते हैं. बाहर का प्रॉफिट हो भी जाते हैं लेकिन अंदर खाली तो बढ़ता जाएगा ना, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रूथ. Every time you go against your truth, you will acquire something outside. Maybe money, maybe position, maybe comfort. You will acquire. But अंदर आप खाली होंगे. अंदर जितनी फीस 100 पे थी 90 पर आ जाएगी, 90 पर थी 80 पर आ जाएगी. लोनलीनेस बढ़ने लगेगा. अंदर ही अंदर आपको फियर क्रिएट होने लगेगा. बिकॉज आप अंदर से कॉम्प्रोमाइज करके आपने बाहर कुछ एक्वायर किया. पर हम वो क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? सिस्टम में क्यों हो रहा है ये? All answers are right. Why do you think? Why do we resort to such ways? Because we are looking for what? What are we looking for? Why can't everybody just do what is right? That's right. चाहिए the purpose of life क्या है? If we don't have answers to a lot of deeper questions, we'll never be content in our life. And contentment is very, very important. Are you all happy? Are you all? Then there's a difference between being comfortable and being happy. I'm not asking, are you all comfortable? Comfortable is having a good house, maybe a car, whatever. So there is a huge possibility that somebody is comfortable but may not be happy. Are you all happy? Partially. What is partially happy? This is the most diplomatic answer. What is partially happy? Please explain it to me, sir. It all depends upon the perception of the individual. And it varies from person to person. Like, give me a Like reason. feeling of being happy Yeah. is definitely, we all rightly very much agree with whatever we told. But there is an interaction always. Being a doctor and physician, we know that this our intellectual levels that comes from the prefrontal cortex of the brain, where we are thinking, we are doing work, actions, innovations and all. At the same time, for emotional purposes, you have got limbic system and where the amygdala bodies and posterior hypothalamus. No. They're concerned with these emotions. Mm. There is a war between this EQ and IQ. And whenever the person is taunting, whenever the person is doing some adverse actions against us, we are immediately try to react. Do we have a choice? So we have to, there should be a balance between the EQ and IQ. And as rightly mentioned, that this EQ, that is emotional feeling that we are not taking care. We have to think from the opposite side. IQ is intelligent quotient. That is there. EQ, like very rightly you said, is how we respond. How we respond, like you said, when somebody criticizes us.
Let's take this example only. I criticize one of you, you're saying, I may criticize the sister. इसे क्या पहना आपने, कैसे ड्रेस पहनी हुई है? कि कोई ड्रेस है पहनने वाली, इसको I have the power to criticize. I have the power. Anybody externally has the power to be rude, lie, criticize anything. So I can criticize her. Now after I criticize her, उसको उनको या तो बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, दो ही तो ऑप्शन है ना, या तो बुरा लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा. That is dependent on her. Now अगर बुरा लगेगा तो क्यों लगेगा? Would you feel bad if somebody criticizes you? Perception. Let's talk about let's talk about this perception. If there is somebody who criticizes you tomorrow, आपने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी, आप बिल्कुल टाइम पर नहीं आते हैं, आपसे कुछ भी, and we're all subjected to criticism on and on. And there's somebody who's criticizing me, which means what kind of energy is coming from there? Negative. It's like a black ball is coming from there. And most of the time I feel, मैं वो फील कर रहा हूँ जो वो मुझे बोल रहे हैं, मैं वो फील कर रहा हूँ जो वो मुझे, that's not the truth. वो तो कुछ भी बोल सकते हैं वहां खड़े होकर के, उनके ऊपर हमारे पास पावर ही कहाँ पर है? कोई भी चिल्ला सकता है, कोई भी रूड हो सकता है, कोई भी गुस्सा कर सकता है, कोई भी क्रिटिसाइज करता है. एंड समटाइम्स वी आर विद पीपल जिनकी नेचर ही होती है क्रिटिसाइज करने की, डे इन डे आउट हम उनके साथ काम करते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं. अब वो वहां से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम वो फील नहीं करते, वो जो बोलते हैं. उसके बाद कौन बोलना शुरू करता है? उसके बाद कौन बोलना शुरू करता है? हमारा मन. उसके ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है? वो आपकी निंदा कर सकते हैं, आपके मन में नहीं घुस सकते हैं. वो आपकी निंदा कर सकते हैं, वहां खड़े होकर के जोर जोर की चिल्ला सकते हैं, रूड हो सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, फिजिकली भी हम कर सकते हैं. But nobody in this world has the power to enter your mind. आपके मन में नहीं घुस सकते हैं. अब आपका मन सोचना शुरू करेगा और जो आपने सोचना है वो आप फील करेंगे. और वहां वो पावर है, पावर ऑफ द माइंड, पावर टू क्रिएट द राइट थॉट, पावर टू चूज. अब आप वहां पर ये भी सोच सकते हैं कैसे कैसे बोल सकते हैं, सबके सामने कैसे बोल सकते हैं, जब देखो ऐसे बोलते रहते हैं, इनको तो ऐसा भी मन जो ज्यादातर सोचते हैं. तो हमने नेगेटिव सोचना शुरू किया. विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप कौन सी इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे? कौन सी इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. जैसे आपने किसी कैसे बोला, क्यों बोला, हर बार बोलते हैं, ऐसे बोलते रहते, ऐसे इतनी समझते हैं, पोजीशन की एडवांटेज उठाते, कुछ बोलते हैं, बहुत फास्ट चलता है. सो व्हाट इज द फीलिंग जो आएगी एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स? क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे? बट वो हर्ट उन्होंने नहीं की. All our lives we keep telling ourselves, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया. नहीं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया. हर्ट किसने क्रिएट किया है? उठाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उठानी पड़ेगी. Because if you tell yourself उन्होंने मुझे हर्ट किया है, then you'll have to wait all your life कि अगर उन्होंने हर्ट किया है तो हील भी कौन करेगा? तो उन्होंने हर्ट भी नहीं किया तो वो हील कहाँ से करेंगे? And so many times वो कहते हैं मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, what I said was accurate, वो तो बोलना ही. They are, वो बिल्कुल उस चीज से इग्नोरेंट होते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है. वो कहते हैं तो बहुत जरूरी है. So they can criticize you, but कोई आपके मन में नहीं घुस सकता. Please take that power back. और फिर वो हर्ट है ना, वो थोड़े समय में हर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Revenge लास्ट है. पर होगा जरूर. And probably you already reached there. And that is why it suddenly came out of experience. Because yeah, अगर आप उसको कैविटी में तो रूट कैनाल में तो जाएंगे ना. आप कैविटी को कैविटी में ठीक नहीं करेंगे तो रूट कैनाल में तो जाएंगे. हर बीमारी के साथ ऐसा होता है. तो हर्ट जो है वो 2-4 दिन 10 दिन के बाद हर्ट नहीं रहता. वो हर्ट किसमें चेंज हो जाएगा? एंगर में. एंगर, आपको गुस्सा आएगा, पर आप उस पर तो नहीं निकाल सकते जो सीरियस है. तो फिर आप किसी जूनियर पर, किसी नर्स पर, किसी स्टाफ पर, किसी
घर में बच्चों के ऊपर, कुछ नहीं तो पेट के ऊपर, कहीं 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 पर वो एनर्जी निकालती है अपना एंगर। फिर वो एंगर धीरे धीरे किससे, एंगर है अंदर ही अंदर, आप उसको नहीं फील करेंगे, वो फिर धीरे धीरे जो एंगर है हेट्रेड में बदलने लगता है, और फिर वो हेट्रेड धीरे धीरे रिवेंज में। एंड रिवेंज कैन बी वेरी सटल। हाँ, रिवेंज कोई हम ऐसा फिल्मों की तरह रिवेंज नहीं होता। रिवेंज कुड बी एज सिंपल एज नॉट कोऑपरेटिंग। आज पता था इम्पोर्टेंट सर्जरी है, उनको आपकी जरूरत थी, but you figured out an excuse and you said, no, I am not well or something. That is exactly taking revenge. It is very subtle. It's not like big thing. The moment I withdraw from my responsibility, it is taking revenge. Not understanding कि मैं उनके लिए थोड़ी ना यहाँ पर सेवा में था, मैंने अपनी जीवन 12 साल 10 साल की पढ़ाई इनके लिए करी थी, मैंने समाज की सेवा के लिए करी थी। Our relationship is separate and my duty is absolutely separate. My duty is towards the society and no matter what, in वो सारी emotions मेरी duty के बीच में नहीं आ सकते, लेकिन वो फिर कहते हैं इमोशंस टेक ओवर कर देते हैं। सिंपल चीज थी, उन्होंने कुछ बोला, यू हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक। वहां पर अगर आप अपने को कहते ये जिस तरह से बात कर रहे हैं ये इनकी पर्सनालिटी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरह से लोग बात कर रहे होते हैं ना, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर पर्सनालिटी। जिसके पास जो है वो वही देगा। हर्ट पीपल हर्ट पीपल, हर्ट पीपल ऑलवेज हर्ट अदर पीपल। जिसके पास जो चीज के अंदर जो है उसको दबाएंगे तो वही निकल करके बाहर आएगा ना। सो इट हैज नथिंग टू डू विद यू, इट इज देयर पर्सनालिटी। आप उनकी सारी बात सुनो, क्रिटिसिज्म की नेगेटिव एनर्जी को हटा दो, उसमें से अगर कोई जरूरी फीडबैक है तो ले लो, अपने को चेंज करने की जरूरत है तो कर लो, नहीं है तो एक कान से सुना और आता है हम सबको करना, और कहाँ करना है वहां करते नहीं है। जरूरी बातें सुन करके निकल जाती है, पर यहाँ पर भी फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक और क्रिटिसिज्म में क्या फर्क होता है? Is there any difference between? Feedback is always constructive. Can criticism be constructive? Subtle way. Then how is it criticism? Can I say something very constructive, but like a criticism with all the anger and sarcasm and everything? But what I'm saying is very important. Prejudiced response, criticism. Whereas this, No, not necessary. See, criticism है, मैं आपको बात बिल्कुल ठीक समझा रही हूँ कि ये ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए था। मैं नर्स को, फॉर एग्जाम्पल, इफ डॉक्टर आई एम टेलिंग, बट इट्स नॉट डन विद डिग्निटी, इट्स डन इन अ क्रिटिकल वे। 10 बार आपको समझाया, फिर वही गलती करते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे करेंगे, ये इतना डेंजरस है पेशेंट के लिए, आपको समझ नहीं आता है। So what you're saying is very constructive. What you're saying is not wrong, but what you're saying is very, very. See, criticism and feedback at the level of words can be same, but it is different in energy. क्रिटिसिज्म की एनर्जी नेगेटिव होती है। क्रिटिसिज्म कब होता है? जब आपने किसी की गलती देखी और उसकी गलती ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, और उस डिस्टर्ब इमोशन के साथ आपने उनको बोला। तो आपने बोला सही, लेकिन जो एनर्जी आपने दी वो कौन सी थी? डिस्टर्ब। तो बोल, क्रिटिसिज्म, फीडबैक में लगभग सेम ही होंगे, लेकिन आप इफेक्ट हो गए, आप डिस्टर्ब हो गए, आप उससे अपसेट हो गए, आप गुस्सा भी हो गए, और अब आपने जब बोला करेक्ट, लेकिन आपने वो सारी एनर्जी उसको फेंकी, और इसीलिए उस व्यक्ति को आपकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसको सिर्फ क्या फील हुई? वो एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज वी फर्स्ट फील देन वी हियर। So if we feel something which is very negative, our power to hear and absorb reduces. और वहीं पर फीडबैक में क्या था? गलती थी, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं अंदर से वेरी वेरी एज अ डॉक्टर, वट एवर माई रोल, वेरी स्टेबल। आउटसाइड फर्म भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, असर्टिव भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्जिन नहीं है ना बार बार वो मिस्टेक करने की। लेकिन अंदर में उस व्यक्ति के प्रति 50 गलत संकल्प करने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन आई गेट डिस्टर्ब्ड,
by somebody's mistake, फिर वो क्रिटिसिज्म के रूप में निकल करके आता है, निंदा के रूप में निकल कर आता है. दिस इज नॉट ऑलवेज द वर्ड्स. वो निंदा वो वर्ड लेवल पर नहीं होता, वो वाइब्रेशन के लेवल पर होता है. कैन आई नॉट गेट डिस्टर्ब एंड स्टिल गिव द शिक्षा? जो भी मुझे उसको शिक्षा देनी है, जो भी फीडबैक देना है, गाइडेंस देनी है, बिना डिस्टर्ब हुए कर सकते हैं? कर सकते हैं? करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, हम कुछ सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, जूनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, सब प्रकार के बैठे हैं. हॉस्पिटल के अंदर कल्चर में गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा या क्रिटिसिज्म सामने वाले की एफिशिएंसी को कम करता है कि नहीं करता. स्कूल में भी जाकर के देखो, 2+2 हम सबको पता होता है 4 है, लेकिन अगर वो टीचर डिसाइड कर ले ना कभी कभी टेबल पर आकर के आपकी डायरी के अंदर देखना ऐसे करके, तो कभी कभी वो 2+2 क्या हो जाता था, चेंज हो जाता कि नहीं. अगर टीचर वुड से आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा लेकिन केयरलेस मिस्टेक करता है, एनीबडी हु इज डूइंग केयरलेस मिस्टेक इज आउट ऑफ फेयर. क्योंकि वो 2+2 उसको पता है 4 था, लेकिन उस समय मन सोचने लग जाता है क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैं राइट कर रहा हूँ, मैं रॉन्ग तो नहीं कर रहा, मेरी टेबल पर आकर के खड़े हुए हैं. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट हो गया, फोकस आपका शिफ्ट हो गया, मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती है. तो जिस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत क्रिटिसिज्म है या जिस एनवायरनमेंट में बहुत एंगर है, उस एनवायरनमेंट में गलतियां ज्यादा होती है, कभी भी आप देख लेना. और अगर वहीं पर कोई ऐसा है, क्योंकि हायरार्की तो है ही, लेकिन दैट समबडी कहना भी सब कुछ है. एंगर का मतलब ये नहीं है कि हम कहेंगे नहीं. द ओनली थिंग इज गलती उनकी, और वो गलती यहाँ डिस्टर्बेंस न क्रिएट करे, और यहाँ उसके बारे में हम 10 गलत संकल्प न करें, और अपने को स्टेबल रख करके फर्म होकर के वो बात करें. और दोबारा कोई गलती हो तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें, और बाद में गलती हो तो सस्पेंड भी करना हो तो डू एवरीथिंग यू वांट टू डू आउटसाइड. जो एक्शन आपको बाहर लेना है आप बाहर लें, बट मेक श्योर यहाँ पर मन कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली स्टेबल. That is only possible when every thought is right. When you're not getting affected by other people's behavior, when you're not getting affected by patient and nurses' behavior, humans. And there was one program, another sister was doing. There were 3,000 nurses there. And she said, what is the reason for your stress? Shivani Ben was there in one of them. She was sharing. And she said, out of 3,000, she thought they are going to say nurse है, तो कोई कहेंगे कि erratic working hours हैं, patient ऐसा करते हैं, ऐसा. The one reason that everybody said कि हमारे stress का कारण है जब डॉक्टर साहब गुस्सा करते हैं. Yes, वहाँ से भी yes. But everything else we can deal with. Everything is okay. But what gives us the most stress is जब वो डॉक्टर साहब गुस्सा करते हैं. And then she said to her, जैसे वो पेशेंट पे तो कितना गुस्सा करता है, कभी प्लेट खाना नहीं खाएगा, दवाई नहीं लेगा, प्लेट उठाकर फेंक देगा, इंट्रावीनस निकाल देगा, क्या 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 पेशेंट करता है, तब नहीं आपको गुस्सा आता है. कहते नहीं ना, वो तो बीमार है. तो वो बीमार है तो उसके प्रति क्या आता है, रहम आता है. तो फिर उन्होंने उनको कहा, अच्छा वो बीमार है ना, वो जो डॉक्टर साहब गुस्सा कर रहे हैं ना, वो भी बीमार है. पेशेंट जिसकी आप सेवा करते हैं वो तन से बीमार है, और जो जोर जोर के चिल्लाता है वो मन से बीमार है. So the next time you see them screaming and shouting, all you have to remind yourself is वो बीमार है. और बीमार के प्रति क्या आता है, बीमार के प्रति क्या आता है. She said it became so easy for that nurse then just to understand, okay, ठीक है, वो मन से बीमार. But every time we get angry, we create an environment of fear. क्योंकि हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा ना, तो फिर हमें लगता है गुस्सा क्यों आता है जब कोई मेरे अनुसार नहीं चलता. तो एक है कि हम उस चीज को प्यार से बोलते हैं,
लेकिन दूसरा अभी कॉमन हो गया है ना, एंगर बिकम हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन, नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज डैमेजिंग दैट वन पर्सन वाज डूइंग इट द मोस्ट। इट्स नेगेटिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके बॉडी को डैमेज कर रही है, आपके मन की शांति को खत्म कर रही है, आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो आप तक नहीं रहेगी, वो वाइब्रेट होती है, तो वो उस व्यक्ति तक जाएंगी और रिलेशनशिप्स आर गेटिंग अफेक्टेड। जिसको आप डांटेंगे वो अपने तक नहीं रखेगा, उसने 10 और लोगों को जाकर के बताना है आज क्या हुआ, बताएगा कि नहीं बताएगा। वो 10 लोग भी आपके बारे में गलत सोचेंगे, आपने एक को डांटा, वहां पर 10 लोग आपके बारे में आपको कहेंगे कुछ नहीं, पर आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी इज टारगेटेड टुवर्ड्स यू। आप अपने करियर में बाहर के लैडर में बहुत आगे बढ़ रहे होंगे, अंदर में खाली हो रहे होंगे, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर नॉट थिंकिंग वेल फॉर यू। धन भी कमाना है, लेकिन धन के साथ साथ परमात्मा सिखाता है धन भी कमाओ, लेकिन धन के साथ साथ दुआएं भी कमाओ। धन एक ऐसी चीज है जो पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। धन की एक अपनी लिमिट है, धन संभव को संभव कर सकते हैं। दुआएं वो चीज होती है जो असंभव को संभव कर सकती है कि नहीं? इससे तो फिर आप ही कई बार कहते हैं ना, अभी दवा हो गई, अभी क्या करो? दुआ। Because everything that you've done, you can do. Still also, a miracle can happen. And that miracle cannot happen with money and treatment. That miracle can happen if that patient has accumulated blessings. तो फिर सब दुआ करना शुरू करते हैं, सब प्रे करना शुरू करते हैं, सब पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करते हैं। एंड समटाइम्स वैसे तो वो ओवर द इयर्स अक्यूमुलेटेड से होता है, कहते हैं वैसे तो दवा नहीं है, तो दुआ से ही ठीक हुआ है। दुआ मिरेकल क्रिएट कर सकती है, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल कर सकती है। और हम ऐसी फील्ड में है, हम हर सेकंड दुआ कमा सकते हैं। बाकी सबको दुआ कमाने के लिए बाहर पुण्य करने जाना पड़ता है, कुछ सेवा करे, चैरिटी करे, पुण्य करे, तो दुआएं कमाए, क्योंकि दुआएं साथ जाती हैं। लोग सेवा क्यों करते हैं, दान क्यों करते हैं? धन यही छूट जाएगा, आपने धन का दान किया करके ये पुण्य बन गया, पुण्य साथ जाता है, धन यही रह जाता है। तो भारत में दान का कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? सेवा करो, दान करो, चैरिटी करो, बिकॉज यू आर अक्यूमुलेटिंग पुण्य। पुण्य कर्म साथ में जाते हैं, एवरीथिंग एल्स दैट यू अक्वायर्ड यहाँ रह जाता है। तो वो जो अक्वायर्ड ब्लेसिंग्स है ना, ब्लेसिंग्स आर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट। ब्लेसिंग्स आर नॉट कि मैंने किसी के पाँव छुए, उन्होंने कहा आशीर्वाद, नॉट व्हाट पीपल आर सेइंग व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ देम। नो नो नो, एवरीबॉडी सेज नाइस थिंग्स व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ देम। It is when I'm not in front of them what people are thinking about me. That is subtle blessings. That is something which will keep your heart at peace. So money will bring comfort in your life, and everything is okay with money and comfort. There's nothing wrong. To aim for a comfortable life is a good thing. Today, if you have a comfortable house, a comfortable car, earned in the right manner. One more thing. There's another thing which is very, very important. Money is energy, it's not just currency. इसलिए भारत में ये 4 चीजें साथ में जुड़ी होती है। भारत में नहीं, ये तो लॉ है, पर हमारे यहाँ ये लॉ पहले सिखाए जाते थे बहुत अच्छे से। आपके घर में धन आएगा, उस धन से क्या आएगा? अन्न। जैसा अन्न होगा वैसा मन, जैसा मन होगा वैसा जन। 4 एनर्जी सर्कुलेट होती है। अगर वो अन्न जो आ रहा है उसमें दुआ नहीं लगी हुई, अगर कुछ हमने थोड़ा बहुत ऐसा किया और वो हमने धन कमा लिया, उस धन में कभी बरकत नहीं होती। एंड स्पेशली वहां तो कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते जहां पर सामने वाला, जैसे किसी भी केस में नहीं कर सकते, बट इफ देयर इज समबडी हु इज कमिंग इन पेन, और वहां अगर हमने उसको जरा सा भी एक्सप्लॉइट कर दिया, इट्स अ वेरी 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 डीप कर्मा। And I met a student, he said, he said after 12 years we become so frustrated that sometimes when that becomes the aim to earn money, हमें भी नहीं पता चलता, because that's not how we start. When we start, the aim is actually to serve the society. But in the process of studying, in process of being
So much happens in those 10, 12 years. And he said, we also change. When you change, we don't realize. And then the purpose becomes, now वो जितना मैंने वहां पे खर्चा किया है, जितना मैंने वहां sacrifice किया है, जितना मैंने वहां पर, now everything I want to earn back. अब अगर वो धन ऐसा है जिसमें किसी की भी ब्लेसिंग नहीं है, कोई डिफरेंट एनर्जी है, और वो अन्न का प्रभाव किस पर पड़ेगा? वैसे देखो क्या होना चाहिए, जैसा अन्न वैसा तन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं बोलते, कहते जैसा अन्न जैसा मन जैसा पानी वैसी वाणी। इट्स एन एनर्जी। तो फिर वो वैसा मन होगा, फिर वो मन और उस दिशा में जाएगा, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा, एंड इट कम्स बैक इन सम, फॉर एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. And most people, when it comes back, you must have also seen, जब कोई बिल्कुल जैसे आज आप कार में बता रहे थे कि कोई केस ऐसा होता है, आप यू डन एवरीथिंग, तो भी आप उसको नहीं बचा पाते, तो कहते मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा, वो क्यों, क्यों हम तब बोलते हैं when the karma is returning। जब वो किसी प्रॉब्लम के रूप में आता है, कोई बीमारी के रूप में आता है, कोई फाइनेंशियल लॉस के रूप में आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमात्मा कहते हैं जब वो लौट करके आता है ना, अब क्यों कहने का कोई मतलब नहीं है, वही लौट करके आ रहा है जो कभी ना कभी एनर्जी हमने भेजी थी। तो जब लौट करके आ रहा है, देन डोंट से व्हाई मी, लेकिन जब भेज रहे हैं वो एनर्जी, इस समय पर आपके पास चॉइस होती है। व्हेन यू डूइंग एन एक्शन, एवरीबॉडी हैज अ चॉइस, वेदर आई एम एन इरिटेटिंग डॉक्टर और अ पीसफुल डॉक्टर, whether I'm a compassionate doctor or I'm somebody who's very straight faced, what person I am and what I'm radiating into the universe, I have choice है। आप अपने कर्मा को कॉन्शियसली चूज करें, इवन इफ एवरीबडी इज डूइंग रॉन्ग, प्लीज रिमेम्बर, उनके कर्म से उनका भाग्य, उनके कर्म से उनका भाग्य, मेरे कर्म से मेरा भाग्य है। अगर कर्म बिल्कुल ठीक होते हैं ना, डर होता ही नहीं है जीवन में, क्योंकि भविष्य वर्तमान की परछाई है। नॉट यंग डॉक्टर्स आर सिटिंग हियर, प्लीज रिमेंबर, भविष्य वर्तमान की परछाई है, नथिंग, फ्यूचर इज नथिंग, इट इज जस्ट फॉलोइंग यू, एंड इट इज फॉलोइंग यू जो आप आज करेंगे। सो इवन इफ एवरीबॉडी इज डूइंग रॉन्ग, आपको बस ये लाइन का लिख करके रखो, मेरे कर्म से मेरा भाग्य, मेरे एक्शन से मेरी डेस्टिनी, मेरे को क्या लेना देना कोई क्या कर रहा है, क्या लेना देना मुझे उससे। एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, but it can only bring comfort, not happiness. Happiness is state of mind, what you think here. So there could be somebody who is very comfortable yet very miserable. There could be somebody who is very happy yet poor. There could be somebody who is very happy and very rich. दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। धन का और खुशी का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। धन चीजें लेकर आ रहा है जो शरीर को कंफर्ट देता है। कंफर्टेबल कुर्सी पर बैठे शरीर कंफर्टेबल है, जमीन पर बैठे होते शरीर को डिस्कंफर्ट होता है। लेकिन जमीन पर बैठने वाला ज्यादा खुश है कि सोफे पर बैठने वाला ज्यादा खुश है, उसका कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इस मन में चल क्या है। अगर ये मन में अच्छा सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, you are able to think right no matter what, if you've taken yourself to that level, then externally कुछ भी होता रहे, you will be at peace and happiness. And because we haven't worked on that, that is the reason desire बढ़ेगी। जो पहले बात कर रहे थे ना, why are people doing wrong? अंदर खुशी नहीं है तो कहाँ से चाहिए? टेम्पररी चीजों से, क्योंकि ये जो सारी बाहर की चीजें है ना, चाहे वो अचीवमेंट है, चाहे वो कोई वस्तु है, वो टेम्पररी खुशी देती है, ट्रिगर का काम करती है, ट्रिगर का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई घड़ी खरीदी, घड़ी का काम क्या है? घड़ी का काम क्या है? पर्पस ऑफ अ वॉच इज टू टेल यू द टाइम। उतना उसका पर्पस उससे ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे वो 200 रुपए की हो, 2 लाख की हो या 2 करोड़, उसका पर्पस उतना ही है कि आपको वो टाइम बताए। अब हम जैसे ही सोचते हैं ना, हमारा एक गेम होता है, मुझे ये वाली खरीदनी है या जो भी, जिस दिन हम खरीद लेते हैं
तो हमारा मन कहना शुरू कर देता है फाइनली आई हैव अचीव दिस, फाइनली आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड, फाइनली। तो वो एक एक थॉट खुशी दे रहा होता है। घड़ी में कोई फीलिंग नहीं है, ड्रेस में कोई फीलिंग नहीं है, वो 2 लाख के बैग में भी कोई फीलिंग नहीं है, वो जड़ चीजें हैं। लेकिन वो आपको ट्रिगर करती है। 1 दिन 2 दिन के लिए आप कहेंगे फाइनली मेरे को जो चाहिए था मैंने मिल गया, एंड इट डजंट स्टॉप देयर। देन यू विल वेयर इट एंड गो टू द ऑफिस। आप हॉस्पिटल आएंगे वो ड्रेस या उसको पहन के, एंड देन यू विल वेट। यू विल वेट फॉर व्हाट? Ajit? For others to say something. And sometimes when others don't notice, you don't like it, huh? Because if others will appreciate, it will become a second trigger for you to think nice. जब वो कहेंगे बहुत अच्छी, हाँ अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना, अच्छी लगती है ना. So everything is triggering something here. We could have been very happy with very little. So I think कि वॉच ने खुशी दी नहीं, वॉच ने वो संकल्प चलाया आपके मन में, और उसी में से अगर किसी ने कह दिया ना अच्छी तो बहुत है पर आप पर सूट नहीं कर रही, वही है वो उतने की इतनी डायमंड स्टडेड भी हो, पर आपके मन ने कहना ऐसे, मतलब इनको सेंस भी इसने खुद देखा क्या कहने, आपने तो कोई है नहीं देने की, और so your thought process has changed, and the moment your thought process change, वो चीज वहीं पड़ी है, पर वो अब आपको खुशी नहीं देगी, क्योंकि खुशी मन की स्थिति थी। And then we get into this cycle of desire and wanting and acquiring and achieving and pulling somebody and what not, just so that we want a temporary kick of happiness. अगर वही मन पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते, it was free. And a happy mind and a peaceful mind and a compassionate mind would have served the world so much better. Don't you think so? Don't you think so? Take out some time to empower your mind. थोड़े ही साल हुए हैं when we are not paying attention to this. Like I was saying, पहले दोनों education थी, modern भी, spiritual भी. आधुनिक और आध्यात्मिक पढ़ाई साथ साथ चलती थी. अब सिर्फ आधुनिक पढ़ाई रह गई है, और आधुनिक पढ़ाई का पर्पस हो गया है धन कमाना, और जब अनसर्टेन वर्ल्ड हो जाता है तो आधुनिक पढ़ाई काम में नहीं आती है, उसमें फिर जो पढ़ाई काम में आती है अध्यात्म की, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना है, स्टेबिलिटी, बीइंग फियरलेस. Otherwise tell me why children today are committing suicide just because they failed an exam. Does it make any sense? They're committing suicide just because they failed an exam, because nobody taught them that life is about sometimes winning and sometimes failing. यही नहीं है लाइफ की सदा सदा विनिंग 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 है. किसकी लाइफ ऐसी है? हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये लाइफ है. ये लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन. सिखाना नहीं किसी को कि कभी जीत होगी कभी हार होगी. Child, it is okay. 16 lakh children are going to sit for an exam, and there are only 1.3 lakh seats. Somebody is going to fail, but somebody is going to fail an exam. That doesn't mean you are a failure. But every time they failed an exam, they thought, I didn't fail an exam, I am a failure. And they thought, if I am a failure, then what's the point of living? So the suffering became so unbearable that the only thing that was left was to end their life, just because nobody taught them that life is this. Life is sometimes winning and sometimes losing. This is what life is. कोई भी सफल व्यक्ति भी दुनिया का आपको नहीं मिलेगा जिसने अपने जीवन में असफलता न देखी. शुरू से तो कहानियां सुनते थे, वो कभी किसने बल्ब बनाया, किसने टेलीफोन बनाया, they failed 100 times. Then they found out. तो वो तो नहीं सिखाया कि 100 times fail होना है, then they won. नहीं, one failure is also such a big thing. What is such a big thing about one failure? What is such a big thing अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दी? कौन ऐसा दुनिया में जिसकी कभी इंसल्ट नहीं होती? कौन ऐसा जिसको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया? Nobody taught them how to face criticism. अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया वो उसकी पर्सनालिटी है. How you have to respond is your choice. Thank you. That's the importance. और इम्पोर्टेंस नहीं दिया इसलिए
आजकल के बच्चे, आजकल के यूथ स्ट्रेस्ड है, खुश नहीं है, स्ट्रेस्ड है, वेल ऑफ है, आईक्यू अच्छा है, धन भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन खुश नहीं। तो क्या मतलब है, उसको सफल सोसाइटी नहीं कर सकते हैं। धन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए और पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, और तीनों के लिए अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है। So today's talk, like we've been doing talks different places. It is a trigger, it's a realization. कुछ सुनकर के परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन आज 1-1.5 घंटा इसलिए होता है, it's sometimes a wake up call कि मुझे 15 मिनट, आधा घंटा अपने लिए रोज निकालना है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अगर आप एक चीज भी चेंज कर देते ना, अगर आप सिर्फ रोज आधा घंटा अच्छा सुनना शुरू कर देंगे, जो हम देखते सुनते पढ़ते हैं वही मन सोचता है, जो हम देखते सुनते पढ़ते हैं वो मन का खाना है। अगर हम इतना सा भी शिफ्ट ले आते हैं ना कि सुबह उठ करके जिस समय हम रेडी हो रहे हैं, हम शावर ले रहे हैं, हमने अपने फोन पे कुछ अच्छा चला दिया आधा घंटा, आप 1 महीने में देख लो, यू बी अ डिफरेंट पर्सन। Because then when a challenge will come, you will think differently, you will feel differently, you will respond differently, your destiny will be different. Thought creates your destiny. आपका हर संकल्प आपका भाग्य लिख रहा है, लेकिन वो संकल्प वो चलेगा जो आपने मन को खाना खिलाया। और जो मन को हम खाना खिला रहे हैं ना आजकल, टीवी शोज, न्यूज, उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्यों है? I was in a flight 20 days back. पठान जलंधर और सामने मेरे साथ थर्ड सीट पे बच्चा, मैं विंडो सीट पे थी, फिर एक सीट के बाद नेक्स्ट सीट पर एक बच्चा था अराउंड 6-7 years, वेरी रेस्टलेस। वो अपने फादर के से पकड़ करके चलो ना प्लीज चलो ना, उसके फादर कहते बस 5 मिनट में जब उड़ जाएंगे, 5 मिनट, वेरी वेरी रेस्टलेस। देन आई आस्क्ड द फादर, ऐसे क्या हो गया? कहते जब से उसने वो प्लेन क्रैश टीवी पर देखा है ना, हर प्लेन में बैठकर उसको लगता है कि उड़ेगा तो क्रैश हो जाएगा, उसको अंदर में डर बैठ गया है। अब वो बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस बच्चे ने टीवी पर, क्योंकि वो जब आया होगा तो सबके घरों में इतना टीवी चलता है, तो वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उस बच्चे ने 7 year old, तो इतनी बार वो देखा कि वो उड़ा और क्रैश, और वो इतनी बार कि उसको वो फियर बैठ गया कि एवरी टाइम ऐसा होगा। तो आफ्टर द प्लेन टुक ऑफ ही वाज ओके, बट ही सेड दिस हैज बिकम अ ट्रॉमा फॉर हिम। He did not even go through that. The trauma is created only by watching news. Why am I watching it? उनका प्रोफेशन है 24/7, they are in competition. I used to work with NDTV many years ago, and in our offices we were watching CNN IBM just to see who will put the news first. It's competitive. Everybody is just trying to put their 24/7 channel है, सबको आपका attention चाहिए. Everybody wants your time and attention to earn money. Why are they giving that time and attention? News जाननी है ना, 20 मिनट में पढ़ लो, आपको सब पता चल जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है। जब आप पढ़ते हैं तो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब आप देखते हैं तो आप इमोशन कंज्यूम करते हैं। आपने पढ़ा, आपको पता चलता है क्या हो रहा है, लेकिन जब आप उसको बार बार देखते हैं तो आप उस चीज की इमोशन को कंज्यूम करते हैं, जो फिर धीरे धीरे आपको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। So 20-30 minutes, only 20-30 minutes of watching something that will not YouTube for content on forgiveness, content on compassion, content on letting go, content on being kind doctor. अजय तो सर मेक इट अ पॉइंट कि जैसे नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, मुझे 15 मिनट कुछ अच्छा सुनना है। Then that's one thing. The second thing, that's the last and then we'll end. Second thing, जैसे हम दिन भर में ब्रेक लेते हैं, कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक लेते हैं कि नहीं लेते ब्रेक, इस तरह से बीच बीच में माइंड का ब्रेक लेना चाहिए। वो आपको आपके फोन पर सेट करना पड़ेगा, every 2 hours में 1 minute। उस 1 मिनट में क्या करना होता है, डूइंग से डिस्कनेक्ट होकर के माइंड में देखना क्या चल रहा है। अगर माइंड में नेगेटिव चल रहा है, तो क्योंकि आप रोज अच्छा सुन रहे हैं तो आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, आपको जेंटली उसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन कह रहा है कैसे कैसे बोला उन्होंने, आपको जेंटली उसको चेंज करना है। उनकी पर्सनालिटी है,
उनके बारे में सोच करके मुझे अपना दिन खराब नहीं करना। आई एम हियर फॉर अ बिगर कॉज। आपने क्या किया, आपने जैसे बहुत सुंदर उन्होंने शुरू में कहा था, यू कैन रिमूव डार्कनेस विद डार्कनेस, यू कैन रिमूव डार्कनेस विद डार्कनेस। टू रिमूव द डार्कनेस यू नीड लाइट। मन के भी जो ये अंधेरा है ना व्यर्थ का, पॉजिटिव नॉलेज, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन उस व्यर्थ को समर्थ करने में, नेगेटिव को पॉजिटिव करने में हेल्प करेगी। डूइंग इट अर्ली और एवरी 2 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो बैकग्राउंड में आपकी सारी शक्ति खत्म कर देता है एंड बाय नाइट यू आर कंप्लीटली डिप्लीटेड एंड इट टेक्स लेस देन 30 सेकंड, 30 सेकंड्स भी नहीं लगते। डिस्कनेक्ट, चेक क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म, जेंटली ट्रांसफॉर्म, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गो बैक। जैसे हाथ धोने होते, कितनी देर लगता है हाथ धोने में, बिफोर एवरी पेशेंट 10-15 सेकंड्स। पर आप कभी भी करेंगे बिना हाथ धोए, करेंगे आप उसको ट्रीट करेंगे? How many times a doctor and a nurse would wash their hands? So many times. But if you don't do it, then it is not right, because then there is more chances कि आप इनका infection pick up कर लेंगे। तो जैसे बार बार हाथ धोना है, ऐसे बार बार बंद धोना है, जैसे हाथ धोना है ऐसे बंद धोना, वॉश इट ऑफ, लेट गो, खत्म। किसी की बात पकड़ के रखी है, किसी का संस्कार पकड़ के रखा है, पकड़ 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 करके रखा है, वो जिन्होंने बोला वो हल्के घूम रहे हैं, मजे में, मौज में, और जिन्होंने पकड़ के रखा है वो बीमार हो रखे हैं। जो पकड़ेगा वो बीमार होगा, जो बोलता है वो बीमार नहीं होता है। जो पकड़ के रखता है रहम करे अपने ऊपर, लेट गो, फॉरगिव योरसेल्फ। इट्स नॉट अबाउट फॉरगिविंग देम, and it doesn't excuse their behavior also. What they did was wrong. If they got angry, it was wrong. If they lied, that was wrong. But they're wrong, उनकी डेस्टिनी है ना, उनके कर्म से। मैंने तो ना ठेका उठा रखा है हर एक की डेस्टिनी का। But when I am holding on, मैं बीमार हो रहा हूँ, I am losing my peace of mind, I am losing my health, I am losing my relationships. So it's not about forgiving them. It's never about forgiving them. It's always about forgiving yourself. Then draw a boundary. ठीक है, now I will इसके साथ इतना ही संबंध रखना है, बात करनी है, नहीं कर, whatever. Don't give say access to people if you think they are toxic. वो जरूरी नहीं है, toxic है ठीक है, stay away from them, but don't hold on in your mind ना। डैमेज क्यों क्रिएट कर रहे हो, उसको लेट को करके बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। इनके साथ बहुत समय स्पेंड करने जैसा नहीं है, बिकॉज they are affecting my state of mind, but that is secondary. First take care of yourself. तो दो चीजें करनी है बस, दो, ज्यादा नहीं। जैसे हेल्थी बॉडी के लिए दो ही चीजें होती है, खाना और एक्सरसाइज। दो ही होता है ना, खाना और एक्सरसाइज। माइंड के लिए भी दो ही चीजें, खाना और एक्सरसाइज। खाना 20-30 minutes of watching something which is good. सेंटर आपको पता है कितना नजदीक है मेडिटेशन सेंटर आपके हॉस्पिटल से? 5 minutes का भी डिस्टेंस नहीं होगा। कहाँ, कौन सा है? कच्छ में प्रेस के सामने ना, वो वहां पे बैठे मेडिटेशन रूम है, जिसको सिट कर, जिसको मीट द सिस्टर्स वंस इन अ व्हाइल, जिसको रीड समथिंग नाइस, 10-15-20 मिनट्स अपने लिए निकालिए। मेडिटेशन कोर्स होता है 7 days का, रोज 1 घंटा देना होता है, करें। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी तो बने ना डॉक्टर, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो 20-30 minutes अच्छी इंफॉर्मेशन एंड अर्ली 30 seconds of break, 1 minute of break, gently changing that thought, that's it. You will realize that you're a peaceful, happy, compassionate person. Okay? आपको पूछना है कुछ? Anything that you want to ask? Don't hesitate. Just one thing only. Answer. Since we all are doctors, and many times you rightly mentioned that you have to see the news in a full manner, whatever the outcome comes, diagnosis. So even if it is whether it is better to high blood pressure, diabetes, or cancer, whatever the type of the disease, if we are disclosing, there are always 4 to 5 phases as part of reaction from the patient. We call it SHABDA, SHABDA.
initially person will be stunned in the state of shock, SH. Then there will be anger from the patient side. And then people bargain, person will bargain. That is my reports are exchanged, my biopsies will exchange, my blood reports are exchanged, doctors likewise. And then comes depression, and then comes acceptance. So these are all the phases. Are This is always denial, not depression. It's mostly denial denial, Denial. reluctance in and denial, then acceptance. and acceptance. So this phases, it depends upon the inherent conception, rather perception from the individual, and that takes some time. So it is, what you said is absolutely correct, but that may not be same for everybody. It depends on जो आपके सामने है, वो भी कितना mentally strong है. कहीं ऐसे हैं जो mentally strong है, आप उनको बताएंगे वो accept कर देंगे. कहीं आप कितनी भी stability से बताएंगे वो तो भी उस चीज को accept नहीं करेंगे. हम वो क्या करेंगे वो डिस्कस करने नहीं बैठे. वो उनका प्रॉब्लम है, वो कैसे करेंगे. हम यहाँ बैठे कि हमने उस चीज को जैसे डिलीवर करना था, जितने कंपैशन से करना था, जितना समय देकर करना था, किया. We can only play our role. How the other person will take, we don't know. But if we see that the other person is totally breaking, and as a doctor, if I spend 1 or 2 extra minutes with them, and if we can, it's a good thing. If you can. Because at the end of the day, they're just about to lose a family member. It's a very big thing. So at one end, like I said, your profession will help you to earn money, but this extra 2 minutes will help you to earn blessings. And we don't do with the intention of earning blessings. ऐसा नहीं है. But that is just the right thing to do. Just to sit with them and hold that mother or hold that child or hold that father and say, it's okay, we're going to try our best, but we don't. You tell me what the truth is. I'm not saying आपको झूठ है. But just be जितना आप कर सकते हैं, so that आपको लगता है मैंने अपना रोल प्ले किया, बाकी तो फिर उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना वो फिर उनका रोल है. बट हमें लगता है कि अच्छा, I have done what I could have done. I spent extra 2 minutes with them. What how can I do? Then another thing that we can do is we can pray for them. जिस समय हम अपने मेडिटेशन में बैठते हैं और परमात्मा से शक्ति लेकर उनको भी देते हैं, परमात्मा आज ऐसा ऐसा हुआ, उनको भी शक्ति मिले कि वो इतनी बड़ी बात का सामना कर सके. That is our blessing for them, our power to them, our silent energy to them. And you will see, you will have beautiful relationships with your patients and their family, and they'll come back. I've tried that today. Do it in your meditation. You say these things to them, you send them to that right energy. They will come back and say, कल तो बहुत शॉक लगा, but Dr. Saab, I'm better today. It is not easy, but I'm better today. Little things that we can do just to make it easier for them. But it is their karmic account. We can't interfere in anybody's karmic account. I think it is a lot of, we've already taken a lot of time. We'll just spend 1 minute in meditation and end it. Take it. Sit comfortably. Relax your body. कुछ पलों के लिए अपने मन को चारों ओर से समेट कर अपने को याद दिलाएं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, जो मैं डायरेक्टली लोगों की सेवा कर सकता. I am directly impacting people. And those people also come with so much hope. And they trust me. वो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं. इसलिए मेरी जिम्मेवारी है अपना बेस्ट देने की. फिजिकली भी और इमोशनली भी. हर पेशेंट जो आता है
वो दर्द में आता है, उसकी फैमिली के दर्द में आती है। उनसे एक्सपेक्ट करने के बजाय उनके प्रति रहम दिल बने। आपके लिए रोज की ड्यूटी है उनके लिए वो एक डायग्नोस उनके सारे जीवन को, शेड्यूल को, फाइनेंसेस को, सब कुछ को हिला देता है। वो दर्द में है, चिंता में है, उनकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना है, अब्सॉर्ब भी नहीं करना है, लेकिन अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उनको हील करना है। ट्रीटमेंट के साथ साथ my energy, my vibration is healing every patient and their family. As an instrument of God, I'm healing every soul to the best of my capacity. I'm not responsible. जिम्मेवार भगवान है, लेकिन मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले की है, लेकिन मैं निमित्त हूँ। With that awareness, I continue to play my role to the best of my ability. Om Shanti. Thank you so much. Thank you, Didi, for your enlightening and soul-stirring words. Your message reminds us that true success begins with inner peace and positive thinking. As a token of our respect, love, and appreciation, I request our respected Dean, Dr. Ajit sir, and Dr. Rekha ma'am to kindly present a memento of honor to our honored guest, D.K. Shreyas. बहुत सुंदर blessing card है, that is for everybody. You can come and collect your blessing cards and then there's something very nice written. Take it as a blessing from God. It's like this. Like for her it is, you are a wise soul who recognizes that the art of thinking is completely dependent on your state of being. There's something nice for everybody. And usually, it normally comes what you are.